हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। तो मैं आ गया हूं आपके लिए लेकर मिशन सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2024। जैसा कि आप लोगों को मालूम है डेट शीट आ चुकी है और जो है 4 मार्च को शुभ दिन है जब आपका जो है वर्ल्ड कप है। मान लीजिए 4 मार्च 2024 को आपका सीबीएसई बोर्ड का फिजिक्स एग्जामिनेशन है। तो जैसा कि आप लोगों ने कहा कि सर यूट्यूब चैनल खोल के आप हमें पढ़ाइए, तो मैं आपके लिए लेके आया हूं क्रैश कोर्स फॉर फिजिक्स क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के लिए। तो बच्चों इसमें जैसा कि आपको मालूम है आपके कोर्स में टोटल 14 चैप्टर हैं। 14 chapters are there in your course and it is distributed in 9 units. 9 units, 14 chapters. ओके, ऑलमोस्ट 6 और 7 मंथ का कोर्स है। ये कोर्स हमें जो है करना है क्रैश कोर्स, मतलब फास्ट ट्रैक पे चलना है। ये मेरा टारगेट ये है कि ये जो है 40 से 45 दिन के अंदर मैं इस कोर्स को करूंगा खत्म, जो पूरा जो है। और इसमें मैं वो टॉपिक्स दूंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही जो है मैं ये भी चाहूंगा कि आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने से करीब 15 या 20 दिन पहले जो है आपका पूरा कोर्स खत्म हो जाए इन ऑल रेस्पेक्ट। तो आज का चैप्टर इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। आज हमें सीखना है कि आपके कैसे 14 चैप्टर को हम जो है सिर्फ 7 पॉइंट में दोहरा सकते हैं। हाउ वी कैन राइट ऑल दी 14 चैप्टर्स इन दी 7 points. So the topic of this lecture is how to prepare for physics examination. How to prepare for physics board examination. Obviously for class 12. This channel is for time being only for class 12. देखिए, so we have to focus only on 7 things. अगर आप पिछले 10 से 15 साल के पेपर देखते हैं, then you will find that the questions are based only on these 7 types of things. So first thing is we should know how many physical quantity you have learned. So name of the physical quantities, their symbol, physicists are lazy, so they use symbol to show a physical quantity. So what is symbol, what is the SI unit, what is the definition, so this SI unit and definition is mostly asked in the examination, just like that. What do you mean by electric dipole moment? Right, it's SI unit. And also we should know the nature of the physical quantity. Nature means it is scalar physical quantity or it is vector physical quantity. So दोस्तों मैंने अपने YouTube चैनल का नाम रखा है, ओके लिख देता हूं यहाँ, फिजिक्स विद डॉक्टर आनंद के शर्मा। ये प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल है आपके लिए। इसी पे मैं जो रेगुलर बेसिस पे जो है ऑलमोस्ट शाम को 4-5 बजे के आसपास डेली आपको जो है वीडियो
मिल जाएगा, जिससे कि आपका कंटिन्यूटी बना रहे और आप जो है एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आ सकें। मेरा इंटेंशन क्योंकि यही है कि आप जो है सभी बच्चे, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हों, चाहे वो जो है आईसीएसई बोर्ड के हों, चाहे किसी भी इंटरनेशनल बोर्ड लाइक कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, इवन द स्टूडेंट ऑफ यूपी बोर्ड फ्रॉम इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, all can enjoy the physics, real physics. Okay, I have created the separate playlist for Hindi medium student and the English medium student. Okay, so second one is, when you know the physical quantity, you have to measure the physical quantity. Okay, it is the basic difference between mathematics and the physics. Okay, so you have to measure the physical quantity, so you should know the formula for measurement of physical quantity. Okay, basically this formula is the master key. If you know the formula of the physical quantity, you can do all the things, all the rest 6 points with the help of mathematical formula. We have not to learn anything in the physics except physical formula. If you know the formula, you can do all the things in the physics. So student, you should focus mostly on the physical formula. If you know the physical formula, your confidence level will be high and you will be at the top in the board examination. Also, you know that the practical examination are going to be held very soon. So if you know the physical formula, your viva voce in the practical examination will be very fine. So it is also important to getting good marks in the practical examinations also. So third one, in the whole course we see that there are some system. कोई भी आपका जो सिस्टम है, जैसे कि जो है डाइपोल है, कैपेसिटर है, सोलेनॉइड है, ईटीसी, कुछ सिस्टम के बारे में आपने जाना, व्हाट इज डाइपोल, व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटर, व्हाट इज सोलेनॉइड, एंड देयर इज सम डिवाइस just like as transformer, AC generator, etc. So you should know about these things at point number 3. Now come to the point number 4, and what you have learned in class 12 course in this 9 units or 14 chapters. There are some principle of physics, physical laws हैं कुछ, there are some laws, there are some rule, there are some principle of physics. So you should know the laws, what are the laws, what are their statement, and what are the mathematical forms of these laws. When you know these 4 things, then you are ready to fire. I mean, you are ready to crack any physical problem in the physics. So come to point number 5, that is called derivation or physical problem. Derivation of any physical problem. अगर कोई भी derivation आता है तो you can easily solve with the help of these 4 points and by
by using simple mathematics of 6th or 7th class. So student, now come to point number 6. If you see the previous examination paper of 10 or 15 years, then you will see that there are some questions based on the cause. What is the reason? Why the bluish color of sky? Why the clouds are white? And why the sun is red at the time of sunset or sunshine? Or why the stilts of the meter bridge are made of thick copper wires? Why the wire of the potentiometer is made of magnetic, etc. Okay. So what is the reason or what is the cause? So student, answer of the reason and cause is also based on the formula. With the help of formula, you have to explain that why is it so. Or you may say that we should know what are the applications of any principle in daily life. If you know the principle, if you know the applications of any principle in daily life, then it is very easy to crack the questions having why or having any cause or reason. Okay, so last but not the least is numerical problem. One of the important parts of your board examination, numerical problem. You have noticed that almost 35 to 40% questions are asked from numerical problems from this section. And you see, आजकल फैशन है जो है डायग्राम वाले क्वेश्चन पूछने का फैशन है, तो हमें डायग्राम वाला कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है. तो इन 7 पॉइंट्स में हमें जो है अपने पूरे कोर्स को फिर से फास्ट ट्रैक मोड में दोहराना है. तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है दिस पॉइंट नंबर 2. यहां से भी जब आप जो कोई भी डेरिवेशन करते हैं तो यहां से भी फॉर्मूला आता है. तो यू शुड लर्न दिस फॉर्मूला. अगर आप फॉर्मूला याद कर लेते हैं, ईच एंड एवरीथिंग कैन बी एक्सट्रैक्टेड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला. यू विल सी ऑल दीज थिंग्स इन द अपकमिंग लेक्चर, अपकमिंग वीडियो. सो स्टूडेंट, नाउ कम टू द नेक्स्ट. Now I am here to teach physics. So first of all, you should know what is the physics. What is physics? So student, physics is the study of nature. To study of nature and its natural phenomena. So we have to study nature. मुझे नेचर को पढ़ना है. तो अब तक आप लोग क्या पढ़ते हुए आए हो बेटा? अब तक आप लोग पढ़ते हुए आए हो बुक्स. You have to read the books. So what is the basic thing you should know to read any book? अगर आपको कोई बुक पढ़नी है तो आपको क्या आना चाहिए? है ना, बच्चों ने कहा सर हमें इंग्लिश आनी चाहिए, हमें हिंदी आनी चाहिए, हमें उर्दू आनी चाहिए. लेकिन मैंने आपको बुक दे दी, वो तो फारसी में है, फिर तो आप पढ़ नहीं पाओगे उसे. तो मेन थिंग इज दैट यू शुड नो दैट व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ दैट बुक, इन विच लैंग्वेज दिस बुक इज. किस लैंग्वेज में ये बुक लिखी हुई है. तो बच्चों मुझे जो है जस्ट लाइक दैट आई हैव टू स्टडी द नेचर. नेचर को पढ़ना है तो वी शुड नो व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द नेचर.
If you know the language of the nature, then you can easily read the or easily study to the nature. आप नेचर को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं अगर आपको जो है नेचर का लैंग्वेज आता है। तो बच्चों आपको जानना चाहिए, यू शुड नो दैट व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द नेचर। सो मैथमेटिक्स is the language of the nature. What does it mean? This means the whole nature can be explained with the help of mathematical formula, mathematics, or each and everything is happening under a fixed mathematical equation. So with the help of mathematics we can study the nature, obviously physics. That's why I am saying that mathematical formula is the master key. उसी से सारी चीजें होनी है। तो मैथमेटिक्स की हेल्प से हमें चीजें करनी है, तो मैथमेटिक्स में पूरा नेचर अब लिखा हुआ है। तो ये जो है कुछ बातें हैं जो आपको जो है बोर्ड की एग्जाम तैयारी करने से पहले आपको करना है फोकस। अब बच्चों हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, दैट इज यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और ये यूनिट कंसिस्ट 2 चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 1 इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, and second one is electrostatic potential and capacitance। देखिए बच्चों, प्लीज नोट दैट दिस यूनिट फर्स्ट इज वेरी बेसिक। ये यूनिट फर्स्ट जो है आपके पूरे वॉल्यूम 1, ओके, आई एम डीलिंग विद एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, वॉल्यूम 1 चैप्टर 1 to 8, वॉल्यूम 2 चैप्टर 9 to 14। तो अगर आपको जो है यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 1 अच्छे से आता है तो बेटा आप जो है वॉल्यूम फर्स्ट पूरा कर लेंगे, मतलब चैप्टर 8 तक आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, ये मेरी गारंटी है। आप देखेंगे कि चैप्टर नंबर 8 का भी टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज से स्टार्ट होगा। तो हमें जो है चैप्टर 1 यूनिट फर्स्ट के चैप्टर 1 में सबसे ज्यादा फोकस करना है, जिससे कि हमारी चैप्टर 8 तक लाइफ बिल्कुल आसान हो जाए। ओके, वी आर हियर टू मेक द थिंग्स इजियर और easiest and interesting also. So we will enjoy the physics. So we should start with this chapter number 1 and go up to chapter number 8 with the help of this chapter. So आप जो है एक सेपरेट नोटबुक जो है पतला सा बना लीजिए, ओके, जिसमें हमें जो है ये सारी जो है क्रैश कोर्स वाली चीजें आप उसमें कीजिए नोट डाउन। हर जो है वीडियो का पिछले वीडियो से कुछ न कुछ संबंध होगा, चैप्टर 8 तक एटलीस्ट। तो इसीलिए जो है हमें जो है उसका जो है आप अपने पास रखिए, एक रखिए रिकॉर्ड रखिए, जिससे आप जो है ना पिछले पेज पलट के आप आसानी से देख सकें, या जो वीडियो आपको देखना पड़ेगा बार बार। ठीक है, ये सब बातें जानने के लिए एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बात और आपको जाननी है बेटा, वो ये कि व्हाट इज द सिलेबस prescribed by the board for session 2023-24, lab test
जो है सिलेबस आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इस साल जो है एनसीईआरटी बुक जो है फिर से अपडेट हुई है, उसमें जो है कई सारे टॉपिक्स जो है हटा दिए गए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे। चूंकि क्रैश कोर्स है तो हमें उन टॉपिक को टच नहीं करना है, और जो है ये जो आपका कोर्स है इसमें भी हमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को कंसीडर करना है। तो जो है सबसे पहले मुझे मालूम होना चाहिए कि जो है ना, किसी भी बोर्ड द्वारा, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड है, आईएससी बोर्ड है, ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज बोर्ड है, उसके लिए 2023 और 24 के लिए क्या जो है कोर्स जो है अलॉट है, क्या कोर्स दिया गया है। तो मैं लिंक में आपको जो है इसका पीडीएफ फाइल भेजूंगा। हमें उसी जो है कोर्स को बहुत स्ट्रिक्टली करना है ना। कभी कभी आप देखते हैं कि एग्जाम में जो है कोई क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स आ जाता है, मान लीजिए वो कोर्स से हटा दिया गया है, लेकिन वो जो है गलती से या किसी जो है ह्यूमन एरर की वजह से एग्जाम में पूछ लिया गया, तब भी आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप उस क्वेश्चन को, अगर आप जो क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते तो कम से कम क्वेश्चन नंबर आप जरूर डाल दें, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, इसमें अगर 1-2 लाइन लिखे भी आ जाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जरूर करना है। यू हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, यू हैव टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन दी फिजिक्स एग्जामिनेशन। तो उसका भी आपके लिए बेनिफिट मिलता है। अगर क्वेश्चन आपका कोर्स आ रहा है तो बेनिफिट गोज टू दी स्टूडेंट, तो उसे भी आपको जो मतलब करना है। हालांकि जो है बहुत रेयर केस में होता है ऐसा जो है ना, सभी लोगों को कोर्स का और रहता है आइडिया, उसी से क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको इसी कोर्स पे फोकस करना है। तो बच्चों ये जो है आज का लेक्चर जो है इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, है ना। जैसा कि आप सब मुझसे परिचित हैं, मैं हूँ डॉक्टर आनंद के शर्मा, और जो है इसके बाद हम जो है ये वाले चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। जल्दी से 2-3 लेक्चर में ऐसा करेंगे, फिनिश करेंगे। तो जो है आज के लिए इतना, आप इस पर सोचिए। आप इसी से जो है आप अपने जो है कोर्स का ओवरव्यू कीजिए कि आपने अपने पूरे कोर्स में कितनी फिजिकल क्वांटिटी सीखी हैं, कितनी फिजिकल क्वांटिटी के आपको अब तक नाम याद हो गए। ओके, कितने जो फिजिकल क्वांटिटी के आपको एसआई मात्रक मालूम है। ओके, फिजिक्स वाले कभी भी बिना यूनिट के बात नहीं करते बेटा। तो जो हमें जो है यूनिट मालूम होना चाहिए। हम जो क्लास में बच्चों से पूछते हैं कि जो है व्हाट इज योर वेट, बच्चा बोलता है 40 क्या कुंटल मान लूं, टन मान लूं, क्या मान लूं, तो 40 kg। तो उसी टाइप से बच्चों जो है आपको ये सारी बातें मालूम होनी चाहिए।